Good morning, students. We will review our syllabus of class 11 chemistry, both theory and practical, and we will see how much we have covered and how much more we have to do. And we will emphasize little bit more on the practical part because theoretical part you all are already versed with. So in practicals, what we have to do and what we have to not do, both we will see by comparing the syllabus of previous year and this year, that is 2020-21. So I'll take you to the screen where I have kept both the syllabus of both the years. Hope this is visible to you. In this, you will find that there are 3 columns. Serial number is there, unit, that means name of the chapter, and the portion to be reduced. Okay. Now these portions are to be reduced. These portions are not to be studied. Moreover, these chapters or these topics of the chapters were studied in class 9th and 10th. Hence, if it is removed in class 11th, so there is no big deal in it. Okay. Generally, teachers in class 11th, they consider this as the pre-knowledge. So these are the pre-knowledge which you already carry from class 9th and 10th. So in basic concepts of chemistry, nature of matter, law of chemical combination, Dalton's theory, concept of elements, atoms and molecules are reduced. That means you will be asked topics based on Bohr's atomic theory, Rutherford's atomic theory, and everything which is there in 2019-20 syllabus minus this much. Now, what has to be studied? How to find out what has to be studied? So let us again go back and see the previous year's chapter. Here you will see we are comparing the syllabus of 1920. That means this is the syllabus of your seniors, okay, not yours. Syllabus of your seniors, previous year. Now, what all had to be studied in this? Say the first chapter was there. So see what is eliminated. This part is eliminated. This part is eliminated. This part is eliminated. This part is eliminated, not to be studied. Okay. And what has to be studied then? What has to be studied then? Atomic and molecular masses, mole concept, all that. In structure of atom again, in structure of atom, Bohr's model of atom has to be studied. So all this has to be studied. So there is nothing like which is eliminated. Okay, no big thing is eliminated. So everything we have to study in this. From the previous year, this year is same only. In chapter 2, everything is same except Dalton's atomic theory and all is not to be studied. Chemical bonding and molecular structure. Surprisingly, if you will see the deleted portion, surprisingly, chemical bonding and molecular structure is having no reduced portion. बात को समझो यहाँ पे कोई भी reduced portion नहीं है. Chemical bonding and molecular structure में reduced portion एक भी नहीं है, मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ना है. ठीक है, everything has to be studied. In states of matter, gaseous theory जितने भी हैं, Boyle's law, Charles law, combined gas equation, Van der Waals equation, ideal gas equation, ये सब कुछ पढ़ना है.
लेकिन जो नहीं पढ़ना है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मोलिकुलर स्पीड्स, लिक्विड स्टेट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये रिड्यूस किया गया, ये नहीं पढ़ना है। कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी and criteria for equilibrium has not to be studied. तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें? हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ना है, मतलब सीपी सीवी नहीं पढ़ना है, सीपी एंड सीवी नहीं पढ़ना है, फिर भी हमने पढ़ लिया है। स्पेसिफिक हीट नहीं पढ़ना है, एंड क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम दैट मींस डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया है बिकॉज ये सब टॉपिक्स इतने ज्यादा कोरिलेटेड हैं कि हम इसको ओमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स में दी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H है ना इज इक्वल टू रूट ओवर KA बाय KC, है ना। ये जो पढ़ना था हमें वो नहीं पढ़ना है अभी, KW, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स वगैरह नहीं पढ़ना है। हैंडरसन हैसेलबक इक्वेशन नहीं पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो है एप्लीकेशंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हाफ ईयरली के पोर्शन तक हमने देख लिया है। फिर हाफ ईयरली के पोर्शन के बाद का हम देखेंगे जब हम वहां पे कवर करेंगे। तभी तक हमने कितना कवर कर लिया है? अभी तक हमने हैंडरसन इक्वेशन तक भी कवर कर लिया है ना। एलिमेंट्री आइडिया, बस एलिमेंट्री आइडिया चाहिए हमें, हमें कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो वी हैव डन अप टू केमिकल इक्विलिब्रियम, हमने इतना कर लिया है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम तक कितने मार्क्स के चैप्टर हुए? केमिकल इक्विलिब्रियम तक हुए कितने मार्क्स के चैप्टर? केमिकल इक्विलिब्रियम तक, है ना, ये है 4 मार्क्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स 4 मार्क्स, यहाँ पे 11 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स 15 मार्क्स प्लस 21 will be how much? 36 marks. So up to 36 marks we have completed, ठीक है। और हमें कितना करना है? और अराउंड 34 मार्क्स के पोर्शन कंप्लीट करने हैं हमें, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये सब हमें करना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या कंडीशन है? इसमें से क्या डिलीट किया गया देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एंटायर चैप्टर रिड्यूस करना है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ज्यादा कुछ केमिस्ट्री है नहीं, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो खुद भी कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, वही हमें पढ़ने के लिए रिकमेंड किया गया है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल पोर्शन में आते हैं, ये तो 70 मार्क्स तक का था। अब प्रैक्टिकल पोर्शन में आते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन में कई सारे सेक्शंस थे। पहले प्रीवियस ईयर का देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर्स का अगर प्रैक्टिकल का हम पोर्शन देखेंगे, ये थ्योरी है, then these are the subtopics, प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स में क्या करना है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टाइट्रेशन करना है ना, टाइट्रेशन करते हैं हम, टाइट्रेशन। तो एक टाइट्रेशन पूछा जाता है और एक सॉल्ट टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है, एक सॉल्ट टेस्ट जिसमें कि आपको निकालना होता है कोई एक कटायन एंड एनायन इन ए गिवन सॉल्ट, ठीक है। इसको एनालिसिस करके हम निकालते हैं, कुछ मेथड्स है, ठीक है, जिसके वीडियोस मैंने पहले डाल दिए हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में
बहुत सारे कंटेंट्स को हटा दिया गया है, जैसे द कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन क्रिस्टल फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन पीएच डिटर्मिनेशन, ये हटा दिया गया है। तो क्या है, एलिमेंटल डिटेक्शन कर सकते हैं हम, एलिमेंटल डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं। कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। प्रोजेक्ट वर्क में हम करते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, और क्लास रिकॉर्ड में हम एक क्लास रिकॉर्ड नोटबुक यूज करते हैं, और वाइवा में जो एग्जामिनर होते हैं दे आस्क यू क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ओरल क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। कैसा पूछते हैं, ओरल पूछते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी करने के लिए मेरे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने एकदम बेसिक्स जो टेस्टिंग है वहां से स्टार्ट करके जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स है वो मैं डालता जा रहा हूं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप ये टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने कैमरा को सीधा कर दिया, आपको दिख रहा होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। किस क्लास के लिए, फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 11। और पब्लिशर का नाम क्या है, पब्लिशर का नाम है लक्ष्मी पब्लिकेशन, ठीक है। ये हॉलमार्क भी लगा हुआ है, ये हॉलमार्क लगा हुआ है जो चमक रहा है, ठीक है। ये हॉलमार्क का मतलब है कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। काफी अच्छा कंटेंट है इसका, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत कॉमन नाम है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्लास 11 के लिए भी आती है और क्लास 12 के लिए भी अलग से आती है, क्लास 11। और ये लक्ष्मी पब्लिकेशन का है। इसमें जो इंडेक्स है वो देखिए, तो जो सिलेबस हमने अभी पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। इसमें जो कंटेंट है इस बुक का, इंट्रोडक्शन, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय क्रिस्टलाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच चेंज, है ना। इन सबको रिड्यूस किया गया है। एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच चेंज, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय क्रिस्टलाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनको रिड्यूस किया गया है, ठीक है। इसे ना भी पढ़ें तो चलेगा इस साल के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चला। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। ये भी नहीं करना है, जो करना है वो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब टाइट्रेशन, ठीक है। तो टाइट्रेशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के जो तरीके हैं वो दिया हुआ है, किस प्रकार से हम 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, किस प्रकार से हम 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं, किस प्रकार से हम 250 ml 5 नॉर्मल HCl बनाते हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं, जब हमें 12 नॉर्मल HCl दिया रहे, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 12 नॉर्मल का है, ठीक है। तो हमें इसको 12 नॉर्मल को 5 नॉर्मल तक लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। इसको डाइल्यूशन करके हम एक फॉर्मूला लगाते हैं N1V1 = N2V2, ठीक है। डाइल्यूशन करके हम कैलकुलेट करते हैं
कि कितना हम 12 नॉर्मल HCl को पिपेट आउट करें और 250 में उसको डिसॉल्व कर दें तो कि वो 5 नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मलिटी दोनों ही दिया हुआ है, N1 एंड N2 दोनों ही दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 निकालना है, कितना वॉल्यूम हम पिपेट आउट करें और 250 ml में ऐड कर दें। ठीक है, देन H2SO4 बनाना है 2 मोलर, 18 मोलर से 18 मोलर H2SO4 दिया हुआ है और 18 मोलर से हमें बनाना है 2 मोलर, तो मोलरिटी दी हुई है M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 is 2, M2 is 18, V1 is 250 ml, V2 क्या होगा निकालना है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा के जो वॉल्यूम निकलेगा उस वॉल्यूम को हम पिपेट आउट करके, पिपेट से सक आउट करके 250 ml में डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये आया टाइट्रेशन मेन। ये सॉल्यूशंस जो ऊपर हैं जनरली आजकल टीचर्स या जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो ये सॉल्यूशन पहले से बना के दे देते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो केमिकल्स हैं वो थोड़ा हार्मफुल हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि आप आगे जाके केमिस्ट्री लें तो बिना मतलब का हाथ पैर जलाना, ठीक है, स्किन पे कोई इन्फेक्शन करवाना, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि वे बैलेंस जो होता है लैब में एक या दो होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, ये टाइम टेकन है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जब आप केमिस्ट बनेंगे, ठीक है, या फिर छोटा मोटा कोई ग्रेजुएशन में अगर आप कोर्स भी करते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइडेड M/20 ऑक्सैलिक एसिड। मतलब according to this book I am talking about experiment 8.5, है ना, हम एक्सपेरिमेंट 8.5 की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बुक क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमें सीखना है और बनाना है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। दूसरा है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड द मोलरिटी of the given solution of hydrochloric acid given is 0.05 molar Na2CO3। ठीक है, ये एक टाइट्रेशन है। तीसरा है given solution is 6.3 ग्राम of hydrated oxalic acid COOH.NH2, ये ऑक्सैलिक एसिड है, crystals per liter। Determine the value of N, that means number of molecules of water of crystallization। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है। यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम्पल के लिए किस प्रकार से आपको लैब मैनुअल लिखना है, लैब रिकॉर्ड नोटबुक मेंटेन करना है, वो मैं बता दूं आपको हल्का सा। ठीक है, हल्का सा बता दूंगा और फिर मैं धीरे धीरे ये सॉल्व करता जाऊंगा और आपको दिखता भी जाएगा। आपका लैब रिकॉर्ड नोटबुक कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। ठीक है, मैंने ये क्लासमेट कंपनी का लिया हुआ है, क्लासमेट कंपनी का नोटबुक है। ठीक है, आप चाहे कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि बहुत ज्यादा कीमती ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बुक भी बोलते हैं, इसको प्रैक्टिकल जर्नल भी बोलते हैं या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नोटबुक भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नोटबुक बोलना। ठीक है, इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नोटबुक में क्या होता है, पहला पेज में इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स में जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाते हैं वैसे वैसे हम नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट और डेट ऑफ सबमिशन लिखते जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। जैसा जैसा मैं लिखता जाऊंगा वैसा वैसा आप लिखेंगे और जैसे ही आप हमारे स्कूल में आएंगे वैसे ही जो एक्सपेरिमेंट आपने अभी लिख के रखा है और ओ लैब्स के जरिए जो सिमुलेशन आपको मिल चुका हुआ होगा उसके आधार पे आप प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, और अपने रिकॉर्ड नोटबुक से कंपेयर करेंगे कि जो आपने रिकॉर्ड नोटबुक में लिखा है एग्जैक्टली वही प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम प्रैक्टिकल नंबर 1 करेंगे। ये कैमरा को मैंने सीधा कर दिया थोड़ा, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल कैमरा है जिसको मैं कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान होगा देखना। हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट भी जल्दी हो जाता है और खत्म भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर हम सॉल्ट टेस्ट पे आएंगे और फिर कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो धीरे धीरे करके सारे प्रैक्टिकल्स इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। पहला है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वन, टू, determine the strength of given NaOH solution using M/20 oxalic acid, ठीक है। ये इंडेक्स में लिख दिया है, बाकी डिटेल्स अभी फिलहाल तो नहीं लिखेंगे हम। देन विल गो टू द फर्स्ट पेज। कुछ लैब मैनुअल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स पहले से लिखे हुए होते हैं। ऐसे लैब मैनुअल को लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल से लैब मैनुअल लीजिए जिसमें कि पेजेस ज्यादा हो, ठीक है, और गैर जरूरतमंद चीजें कम हो। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया यहाँ पे। तो पहले हम लिखते हैं एम। एम में क्या लिखते हैं? टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ of given sodium hydroxide solution by titrating it against M/20 oxalic acid solution। सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पे लिखना केमिकल्स रिक्वायर्ड एंड एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है। यद्यपि हम प्रैक्टिकल एग्जाम में ना लिखें, लेकिन जब हम रिकॉर्ड नोटबुक लिखते हैं तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। तो केमिकल्स रिक्वायर्ड, अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर से ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि लिखना है कि नहीं लिखना है। कुछ एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं और वो वैसा ही चाहते हैं जैसा कि रिकॉर्ड नोटबुक में है, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो होते हैं वो कहते हैं कि पेजेस बर्बाद नहीं करने हैं। जो आपको बोर्ड से पेपर मिले हुए हैं उस एक पेज में ही सब कुछ हो जाना चाहिए और सप्लीमेंट्री ना लेना पड़े। इस प्रकार से आप जो प्रैक्टिकल के मेन रीडिंग्स हैं आप उतना ही लिखें, ठीक है, और ज्यादा बात ना बनाए, ठीक है। ये आपके कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स आजकल ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स ऐसा भी कहते हैं जैसा रिकॉर्ड नोटबुक में है वैसा का वैसा लिखो, ठीक है। इसलिए आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए।
जैसा ही आपको आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जैसा बोलेंगे, आपको उस प्रकार से अपने आंसर्स को लिखने हैं। ठीक है, तो केमिकल्स रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन चाहिए होगा। M/20 ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होगा। वाटर चाहिए होगा। और आपको चाहिए फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इसकी क्या जरूरत है मैं बताता हूँ। फिनोप्थलीन इंडिकेटर, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन के एंड पॉइंट को बताता है। ठीक है, फिर कोई केमिकल अगर हमारे प्रोसेस में आता है याद, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो एक लाइन छोड़ के आप लिखते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड, एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, हमें चाहिए एक ब्यूरेट, हमें चाहिए एक पिपेट, हमें चाहिए वाश बोतल, ठीक है, और भी कुछ चाहिए होगा तो हम इसमें मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? प्रोसीजर। अब ये जो प्रोसीजर है, कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि मत लिखो और कुछ कहते हैं कि लिखो भी। ठीक है, तो आपके समझ के लिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नोटबुक लिखेंगे तो आपको जो है प्रोसेस समझ में आएगा, इसलिए लिखते हैं। चलो इसको प्रोसीजर, बहुत कोई इसको प्रोसीड्योर भी बोलते हैं, प्रोसीड्योर ना बोले, ये प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब प्रोसेस। फर्स्ट, take a burette and wash it with water. Take a burette and wash it with water. And rinse with NaOH solution. जिस NaOH solution का स्ट्रेंथ हमें निकालना है, उस NaOH solution से हम एक बार इसको धो देंगे। ठीक है, इस ब्यूरेट को, ताकि उसमें जो कुछ भी अगर इम्प्यूरिटी है, उस इम्प्यूरिटी के बदले में वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आ जाए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा उस ब्यूरेट में कोई भी दूसरा और केमिकल कंपाउंड ना रहे। सेकेंड, pipette out 20 ml of oxalic acid from the solution in a washed titration flask. Pipette out 20 ml oxalic acid solution in the titration flask. मतलब conical flask. Now in the conical flask containing oxalic acid, put 1 to 2 drops of phenolphthalein. ठीक है,
What we will do, we will put oxalic acid solution containing titration flask put in oxalic acid solution containing titration flask some drops of phenolphthalein. So with oxalic acid, phenolphthalein will show no color. No color. Phenolphthalein shows color only and only with phenolphthalein shows color only and only with sodium hydroxide. Okay. Now we will run the solution in the burette, that is NaOH, into the 20 ml solution of oxalic acid. How long? Till faint pink color does not appear. So when faint pink color will appear, this will show that oxalic acid is completely neutralized by the sodium hydroxide by the reaction shown below. Reaction involved. NaOH plus H2C2O4 will form Na2C2O4 plus 2H2O. This is neutral. This is acid. And this is base. Clearly, 2 moles of NaOH consumes 1 moles of oxalic acid. Now we'll try to understand the process by drawing the diagram once. We take a burette. Now the burette has to be clamped. Okay, this burette has to be clamped. Okay, is kept at a distance like this. Now, inside a titration flask,
This NaOH solution is dropped in the solution containing oxalic acid plus phenolphthalein indicator. Towards the end of the reaction, faint pink color appears. Faint pink color appears. The reaction involved in this is shown here. So clearly 2 moles NaOH corresponds to 1 mole oxalic acid. Now we'll use this stoichiometric relation to find out the concentration of sodium hydroxide solution. Number of moles of NaOH can be written as M of NaOH into V of NaOH. Should be equal to, or this multiplied with 2, M of oxalic acid multiplied by volume of oxalic acid. Now what is known to us, volume of NaOH will be known to us. We can put the value. Molarity of NaOH we have to find out. Molarity of oxalic acid is known to us. Volume of oxalic acid what we are taking is also known to us. But what we don't know is the volume of NaOH consumed. Say, example, serial number means experiment number and initial reading and final reading. Is like this: 1, 2, 3, 4, and 5. So first of all, it was 0 to say 18 ml, then say 18 to 38 ml, then say 38 ml to 58 ml, and 58 ml to 78 ml, and at each condition volume of delta V, change in the volume is 18 ml, 20 ml, 20 ml, 20 ml. So the concordant reading is, this is the concordant reading, change in the volume. So in this way we will get volume of NaOH and we can find out
molarity of NaOH solution. So here we will write the observation. You will do with the help of a scale, serial number, initial reading of burette, final reading, and volume of NaOH consumed in each of the experiment we have to find out. Say first was 1, 2, 3, 4, and 5 experiments we have done. If we do the 5 experiments, then say first it will be 0 obviously, and we got it in say 18 ml. Then from 18 we got say 38 ml. Then from 38 ml, say we got 58 ml. And then from 58 ml, say we got 78 ml. And from 78 ml, say we get 98 ml. So what is the change in the volume? Is the volume of NaOH consumed? In this case it is 18 ml. In this case it is 20 ml. Again 20 ml, 20 ml, and 20 ml. These are called as concordant reading. Your external examiner, just to identify you as a good student, will encircle your reading and would suggest you to write down concordant reading. Okay. Now, calculations we have to do. Calculations. From the stoichiometry of the reaction, from the stoichiometry of the reaction, we can write 2 moles NaOH is equivalent to 1 mole oxalic acid. That means 2 into M of NaOH into V of NaOH will be equal to M of H2C2O4 multiplied by V of H2C2O4. So what is known to us 2 into M NaOH is not known to us. This is what we have to find out. V is known to us 20 ml. Molarity of oxalic acid is given to us M by 20. And volume of H2C2, it is not H2SO4, it is H2C2O4. Volume is 20 ml. We had taken pipetted out. So this becomes M NaOH molarity of NaOH will become 1 by 40 m. So
We know that molecular mass of NaOH is 23 plus 1 plus 16 is equal to 40 gram per mole. So we know that number of moles is equal to given mass by molar mass. This implies 40 divided by 40 gram per mole. Okay, this is gram per mole and this is gram. Is equal to 1 mole or 40 gram NaOH is there in the given unknown solution of NaOH. The conclusion, it's very important to write conclusion. Okay. Hence, with like this, one practical will get over. Backward we are seeing, conclusion we will write, then formula we will write, calculations we will do. All right. We will relate the molarity with the molarity of the reactant. Okay. These are the procedure which we followed. We will take a burette, wash it with water, and then rinse it with NaOH. Then pipette out 20 ml of oxalic acid solution in a titration flask. Put in oxalic acid solution containing titration some drops of phenolphthalein. Run the solutions until the phenolphthalein color becomes colorless, and then I get a favor of getting my child so in this way. Sodium hydroxide, the strength of sodium hydroxide can be determined.